start this. Okay, Kalila wa Dimna. Now, uh, this is the document that I have already shared with you people. And there are some links here, as you can see, right? The first link, I'm opening the first link for you people. All right. So it is a journey of a book, Kalila wa Dimna. What is this whole thing about? And why are we studying this text? And what is there in this text? So be attentive, and that's what you need to know. Now, if you can see this book, which is in front of you, who can just figure out what language is written here? Is this Arabic? Yeah, it is Arabic. Can you see this? Fan talakal arnab? That means the hare, the rabbit. It started walking, right? It started its journey. All right. So this means that you can see that this is a very ancient text, and you can see the animal figures there, and this is written in Arabic. However, let's come to understand what this book is all about, right? So if you just look at this text, which is written here, it is one of the most popular books ever written in Arabic and Persian, and it is the book of Muslim civilization, as they say, known as Kalila wa Dimna, a seller for almost 2,000 years. So it's just such an ancient text, 2,000 years, right? So if it is an ancient text of 2,000 years, they're saying that it was written in Persian and Arabic, right? So Muslims came around 1400 years ago. Islam came in around 1400 years ago, but this is a bestseller for 2,000 years. So its origin is even before it came to the Muslims, or it was translated by Muslims. All right, let's carry on. And it says, and a book still read with pleasure all over the world. It has been translated at least 200 times into 50 different languages, right? I had the good luck of studying this Kalila wa Dimna in the Conference of Birds, which is like Mantiqut Tair, in Arabic when I was studying Arabic in my master's. All right. So I have read this story in Arabic, right? So, but it is a collection of short stories, just like you have Aesop's fables. Remember all those stories that you're growing up with, like the hare and the tortoise, the wolf and the fox and the crow, and all those small little stories with morals. Remember? याद है ना आपको वो stories? Yes, ma'am. Right? So those stories are called Aesop's fables. Now, this story, which is Kalila wa Dimna, what is its origin? First of all, we need to understand this, right? Kalila wa Dimna, as you can see, was originally written in Sanskrit, probably in Kashmir, sometime in the 4th century CE. So it's an ancient text of Sanskrit language and probably written in Kashmir. Understand? Yes, ma'am. All right. Can anybody read it for me from here? If you can read it, is it visible for you? Yes, ma'am. ma'am. All right, please read it. It was written. Kalila and Dimna was originally written in Sanskrit, probably in Kashmir, sometime in 4th century. In Sanskrit, it was called the Panchatantra, or five discourses. Panchanatra, And it's or five discourses, meaning thereby there are 5 main discourses, means 5 main stories in this, right? Okay. There were 3 princes for which this story was written, right? Because they were young 3 princes, and they had driven
their tutors to despair, and their fathers to distraction. Okay, so Panchanathana was basically a Sanskrit text, and it was written probably in Kashmir for 3 young princes who had, driven their father to distraction. So the father asked these stories to be written so that perhaps these stories might help them to become better human beings. Carry on, please. Effort to entrust his kingdom to sons unable to master the most elementary lessons. The king turned over the problem to his vice Wazir, and the Wazir wrote the Panchatatra, which concealed great practical wisdom in the easy digestible form of animal fables. All right. Okay, now there is let me just quickly tell you what is a fable. Can anybody tell me? किसी को पता है कि fable किसे बोलते हैं? Fable और parable ये 2 लफ्ज हैं, ठीक है? वो शॉर्ट स्टोरीज होती हैं जिनको आप उर्दू में हिकायात कहते हैं, ठीक है? वेरी गुड, थैंक यू सो मच शांजा बीबी, राइट? हिकायात कहते हैं या शॉर्ट स्टोरीज कहते हैं. फेबल्स उनको कहते हैं जिसमें एनिमल्स होते हैं. फेबल्स आर द वंस व्हिच हैव गॉट एनिमल कैरेक्टर्स, वेयर एज पैराबल्स आर द वंस व्हिच हैव गॉट ह्यूमन कैरेक्टर्स. अंडरस्टैंड? Yes, ma'am. हिकायात सादी, गुलिस्तान सादी आपने नाम सुना होगा, राइट? उनकी 1-2 हिकायात शायद हम भी पढ़ेंगे. तो हिकायात सादी में इंसान कैरेक्टर्स होते हैं पैराबल्स में, ठीक है? और फेबल्स में आपके ज्यादातर एनिमल कैरेक्टर्स होते हैं. ऑलराइट, गॉट इट? Yes, ma'am. 6 months later, the princes were on the road to wisdom, and later. So carry on, please. Sorry. Yes, ma'am. Wisdom and later rule judicially. 200 years after that, a Persian Shah sent his personal physician Burrows to India to find a certain herb rumored to bestow eternal life upon him who partook of it. Barzul returned with a copy of the Panchatetra instead, which he claimed was just as good as the miraculous herb, for it would bestow great wisdom on the reader. All The right. Shah- Now, the Sh- okay. Hold on. Dekhen, 6 months later, the princes were on the road to wisdom and later ruled judiciously. So this wise wazir, or he wrote this book for them, this Panchanatra, and here he to find 200 years after that, a Persian Shah, okay, a Shah from Persia, he sent his personal physician Burzo to India to find a certain herb which was rumored to bestow eternal life. Aab hayat hota hai shayad usme, right? Hame eternal life mil jayegi, upon him who partook with it, right? अब ये इटर्नल लाइफ का एक कॉन्सेप्ट है बच्चों. हमेशा से बहुत से बादशाह और बहुत से लोग जो हैं इसके पीछे दौड़ते रहे हैं कि हमें इटर्नल लाइफ मिल जाए किसी तरह से. ऐसा है ना? यस और नो? Yes, ma'am. तो ये इटर्नल लाइफ का इतना ज्यादा खप्त क्यों है हमें, या इंसान को इतना ज्यादा इटर्नल लाइफ में रहने का क्या इतना शौक क्या है? इसकी क्या आपको फिलॉसफी नजर आती है? आपने देखिए कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स पढ़ लिया है. In its background, I'm asking you this question. Can anybody tell me why are human beings so inclined towards getting eternal life? Ma'am, one reason can be उन्हें मौत से डर लगता है, और other reason can be उन्हें जो जिंदगी होती है उससे मोहब्बत इतनी ज्यादा हो जाती है उन सारी चीजों से
कि उन्हें फील होता है कि वो सारा कुछ उनसे छिन जाएगा या खत्म हो जाएगा, तो मे बी। हम्म, अच्छा, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है, ये दोनों बातें ही हैं, ठीक है। मगर अगेन अगर हम जैसे हमने पहले भी एक दफा कहा था, और हमने बारहा ये बात मैंने आपको उसमें पिछली क्लास में भी आपसे बात की है कि अगर ओके, सो मैंने आपको पिछली दफा भी जैसे कहा था कि ये जो इटर्नल लाइफ का कॉन्सेप्ट है ना, ये इटर्नल लाइफ का कॉन्सेप्ट जब प्रॉब्लम करता है, और जैसे आपने कहा कि you get used to, you get hooked to things, and then you want to get want to get things, or yeah, you become so hooked, or या कहना चाहिए in love with the things that you have, राइट? और फिर आपको ये जिंदगी इतनी प्यारी हो जाती है कि वो, लेकिन बात ये है कि वो तब ये तसव्वुर होता है जब आप जिंदगी को इन टोटलिटी ना कंसिडर करें। When you consider the life in on this earth, right, as the complete life, right, as we discussed earlier last time, that if you consider life in totality, if you understand life in totality, that this is a phase that we are on this earth for a certain period of time, and we have to get into another phase which is going to be after death, then perhaps our paradigms shift, and then we understand that if we are looking at life, it is not this life which is here, but the life in complete totality. All right, so this was something, ये जो मैंने आपको एक दफा लास्ट टाइम एक शेर भी बोला था, याद है? मौत को समझे हैं गाफिल, इख्तिताम जिंदगी है ये शाम जिंदगी, सुबह दवाम जिंदगी, याद है? Yes, ma'am. तो जो गाफिल हैं हम में से, हम इसलिए मौत को समझते हैं इख्तिताम जिंदगी, which is not the end, it is only the evening of। उसको पर्शियन किंग ने उसको भेजा बुर्जो को, उसका पर्सनल फिजिशियन था, उसने उसको इंडिया भेजा कि जाओ वहां से एक ऐसी वो बूटी लेके आओ, ऐसा वो हर्ब लेके आओ जिससे इटर्नल लाइफ मिल सके, ठीक है। So Burzo returned with a copy of the Panchanatra instead, which he claimed was just as good as the miraculous herb. So Burzo claimed that this book is as good as that miraculous herb, for it will bestow great wisdom on the reader. And when you get that wisdom, definitely the quality of life becomes better. Your paradigms shift, right? देखिए, मैंने आपको पिछली दफा भी हमने ये बात डिस्कस की थी, अगर हम ये समझ लें कि हमने इस लाइफ के बाद 60 साल, 80 साल, 100 साल, जितने भी साल या 50 साल, ये जितने भी हमने इस दुनिया में रहना है, अगर ये लाइफ हम समझ लें कि ये सारी की सारी कंप्लीट लाइफ है, तो फिर तो वाकई में बहुत डर लगेगा, है कि नहीं? और अगर आपको ये समझ आ जाए कि नहीं, इस लाइफ के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ का फेज शुरू होता है जो असल लाइफ है, which our creator has told us that that is your actual life. So फिर हमारे लिए एक विजडम आता है, हमारा पैराडाइम शिफ्ट होता है। तो इसलिए बुर्जो वो किताब ले आया और उसने बादशाह को आके कहा कि ये किताब उस herb से ज्यादा important है, because it is going to bestow great wisdom on the reader. The Shah had Burzo translate it into Pahlavi. Pahlavi is a kind of a Persian. Pahlavi एक जबान है, Persian ही की वो एक dialect है और एक किस्म है, तो उसमें बुर्जो ने translate किया उसको पहलवी में, a form of old Persian, and liked it so much that he enshrined the translation in a special room of his palace. Right? अब क्या है कि 300 years later, after the Muslim conquest of Persia and the Near East, a Persian converts to Islam, यानी था वो पर्शियन बंदा, ठीक है, इब्न मुकफ्फा,
उसका नाम था इब्न मुकफ़ा. वो था पर्शियन, लेकिन he had become a Muslim and he knew Persian language and he knew Arabic language. So after 300 years, a Persian convert to Islam named Ibn al-Muqaffa chanced upon Burzo's Pahlavi's version and translated it into Arabic in a style so lucid, it is still considered a model of Arabic prose. इतनी खूबसूरत उसने अरबी की ट्रांसलेशन की कि जितनी बाकी ट्रांसलेशंस हुई वो इस इब्न मुकफ़ा की अरबी ट्रांसलेशन से फिर बाकी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट होती रही. ठीक. एंड दैट इज व्हाई हिज बुक जो उसने ट्रांसलेट की, वो पंचनात्रा तो थी संस्कृत में, बुर्जो ने उसको किसी और उस पहलवी में, लेकिन उसका टाइटल नहीं हमें पता, लेकिन इसने जिसको ट्रांसलेट किया इसमें लिखा कलीला व दिमना. Right? Kalila wa dimna, meaning thereby this is an Arabic. Kalila or dimna. Urdu में कहेंगे या Kalila and dimna. Right? And इन स्टोरीज के कुछ और नाम भी हैं. कहीं आपको अगर कोई और कहे ये द स्टोरीज ऑफ बिदपाई, BIDPAI, बिदपाई, they are also known as the stories of बिदपाई, because ये बिदपाई की एक वो, यानी कि अगर आप संस्कृत या इस तरफ ईस्टर्न उसमें जाएं जो ट्रांसलेट हुई हैं, वापस भी तो किसी हिंदी में ट्रांसलेट हुई होगी या किसी और चीज में ट्रांसलेट हुई है, तो उनको स्टोरीज ऑफ बिदपाई भी कहा जाता है. ठीक. Are you there with me? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Acha. Yes, ma'am. Now, what is this story about? What is so important about this story that it remained a bestseller for 2000 years, and it is still being taught around the world in different parts of the world, right? Why is this so? Now, it is यहाँ तक तो बात समझ आ गई. In Arabic, in a style so lucid that's still considered a model of Arabic prose, called Kalila wa Dimna. It is Kalila wa Dimna after two jackals. असल में ये दो jackals की story है. Who are the main characters? The book was written mainly for the instruction of civil servants. Now, this is very important. This book was written mainly for the instruction of civil servants. What do you understand by the meaning of civil servants? Civil servants आपके यहाँ भी होते हैं, है ना, जो CSS करके बनते हैं. ठीक है, उनको सिविल सर्वेंट्स कहते हैं ना. तो सिविल सर्वेंट्स के लिए ये क्या जरूरी है, क्यों जरूरी है? अब आपको जब इसको टेक्स्ट पता चलेगा तो आपको फिर यू वुड बी एबल टू अप्रिशिएट कि क्यों जरूरी है सिविल सर्वेंट्स के लिए. ठीक है. मसलन हुकूमत के या एक निज़ाम, एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंट्री चलाने के लिए ये चीजें, ये समझना क्यों हमारे लिए जरूरी है. एंड दैट इज व्हाई ऑल दीज स्टोरीज दे आर स्टिल रेलेवेंट टुडे. Yes or no? अब आप चलते हैं हम इस पे. इसकी थोड़ी सी आपको बैकग्राउंड समझ आ गई? It is about two jackals who are the main characters. The book was written mainly for the instruction of the civil servants. It was so entertaining, however, that it proved popular with all classes, entered the folklore of the Muslim world, and was carried by the Arabs to Spain. There, it was translated into Old Spanish in the 13th century. In Italy, it was one of the first books to appear after the invention of printing. यानी इतनी ये कामयाब और इतनी मकबूल किताब हुई कि ये प्रिंटिंग प्रेस बनने से, इन्वेंशन उसकी जब हुई है, उसके बाद पहली किताब जो छपी थी ये कलीला व दिमना छपी थी. Got it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. अच्छा, अब ये देखिए, ये सारी इसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं. अच्छा, मेन स्टोरी पे हम जाते हैं और उसकी बात हम करते हैं कि वो व्हाट इज दैट अबाउट, राइट? हियर आपको वैसे ये चाहिए था. अच्छा, ये देख रहे हैं आप, मैंने ये लिखा हुआ है आप लोगों के लिए सब कुछ. स्टोरी ऑफ फ्रॉम पैलेस्टाइन अबाउट द रिंग डव. ठीक है, ये एक CBC किड्स के लिए बनाई गई है. फिर उसके बाद ये वाली है कलीला व दिमना. इसको हम अगर क्लिक करते हैं तो अब आपके सामने एक YouTube में आएगी, अभी देखते हैं हम. और अगर इफ यू आर एबल,
कैन यू हेयर इट? आपको तस्वीरें नजर आ रही हैं? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Yes, ma'am. अच्छा, अभी अब हम चलते हैं एक और जगह पे. Let me just go to another link. Can you see this? There are different stories in this. Ring dove है इसमें, ठीक है. फिर स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स है, स्टोरी ऑफ 3 फिश है. ये सारी मैंने लिंक्स आपको दिए हैं. ये आपने देखनी क्योंकि छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो इसी कलीला व दिमना में है. लेकिन जो इसकी मेन स्टोरी है हम उस पर बात करेंगे, ठीक है. व्हाट इज दैट स्टोरी? वो है द स्टोरी ऑफ द लायन एंड द ऑक्स, ठीक है. अंडरस्टैंड? ठीक. अब मैं इसको सामने आपके लगाऊंगी और इसमें हम करेंगे ये कि हम इसको एक्सप्लेन करते हैं. द मेन स्टोरी इज अबाउट दिस लायन, मैम ठीक है. मैम And मैम then he excuse me. is Hello? Hello? he's of course you know the lion is the king of the jungle. हेलो हेलो So होता ये है कि इसको एक आवाज आती है, ठीक है. He is sleeping. इसको he gets a loud noise, mooing noise, right? वो शेर कहां लग रहा है And मुझे? mooing noise is coming from हेलो Lioness. this cow. हेलो हेलो ठीक. अब ये काउ की कहानी ये थी कि remember that the 3 princes who had driven their Hello, fathers to tutors to this यार ये रिकॉर्ड हो रही है वैसे इसका. destination. This ox was being driven by एक यानी पूरा का पूरा एक कारवान आ रहा होता है अच्छी जिसमें बात नहीं रिकॉर्ड हो रही है तो बाद में एक लेक्चर सुन लेंगे ऑक्स जो यार. है वो एक दलदल में फंस जाता है. जब ऑक्स दलदल में फंस जाता है तो वहां पे बहुत कोशिश करते हैं उसको निकालने की, लेकिन वो नहीं निकलता. तो शत्रबा वो उसे कहता है कि इसको अपने एक मुलाजिम को वहां छोड़ देता है कि इसको कोशिश करो, निकलता है तो निकल आए, नहीं तो नहीं सही. ठीक. तो सब लोग फिर सो छोड़ के चले जाते हैं, लेकिन वो लकीली इट कम्स आउट ऑफ दैट बॉग, दलदल. बॉग मीन्स दलदल, ठीक. अच्छा, और वो जब आगे जाता है तो उसको इतनी खूबसूरत ये हरी भरी घास और ये सब नजर आती है, तो वहां पे चलना शुरू हो जाता है. अब वो बहुत अकेला होता है तो इट स्टार्ट्स मूविंग. जाहिर है आपको पता है गाय जो होती है वो किस तरह आवाजें निकालती है. क्या है कि ये जब बहुत ऊंची आवाजें निकालती है, द लायन हैड नेवर हर्ड एनीथिंग सो लाउड. सो व्हाट हैपेंस इज दिस कलीला, ठीक है, एक कलीला है और एक दिमना उसका भाई है, ये दोनों जैकल्स हैं, ठीक है. ये इसके पास आता है बादशाह के पास और उसे आके कहता है कि यू नो व्हाट, बादशाह को कहता है कि मतलब उसको देखता है कि ये डर रहा है थोड़ा सा, बादशाह थोड़ा सा डर रहा है. तो उसे कहता है कि मैं जाके देखता हूँ कि क्या है बात. यानी उससे एक तरह से he gets closer to the king and he gives यानी उसको थोड़ा सा ये कहता है कि मैं तुम्हें एक यानी एक तरह से क्या दे रहा हूँ, एक फेवर दे रहा हूँ, मैं जाके चेक करता हूँ. जब वो जाके चेक करता है तो क्या होता है कि वो इसको he finds this cow. वो वापस बादशाह के पास आता है और उसे कहता है कि अगर आप चाहते हैं तो मैं, ये कुछ भी नहीं एक गाय है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मैं उसको ले आता हूँ, ठीक है. अब उसको पता होता है कि वो बादशाह, बिकॉज ही इज अ लायन, दिस इज अ काउ, बादशाह, द लायन इज डेफिनेटली गोइंग टू ईट दिस काउ, राइट. बट व्हेन काउस कम्स टू द लायन, they, because the cow has also got a positive यानी पॉजिटिव एक आउटलुक अप्रोच या जो भी आप समझ लें, या एक पॉजिटिव उसकी क्या उसे कहते हैं, इसकी पर्सनैलिटी एक पॉजिटिव होती है. शेर की भी पॉजिटिव होती है, बेशक वो खाता जरूर है उसको, लेकिन ये कि बहरहाल बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव एंटिटीज, राइट, बीइंग्स. So they become friends. Now when they become friends, although Kalila had brought them himself, but he did not like them being friends. So what he did was, he thinks of a story. ठीक. अब यहाँ पे आके
एक मिनट में, लेट मी जस्ट प्ले इट, अगर आपको आए आवाज तो बहुत Lion. अच्छा। एक जो कलीला है वो बेहतर है, और दिमना जो है वो is the evil one out of these two brothers. So Dimna comes to the lion, and what does he do? He speaks something in his ear that, you know what, this cow is plotting against you. And then he goes to the cow. See, he comes to him and he tells him that the cow is plotting against him, right? And the same thing he goes and says to the cow, that the lion is plotting to eat you. So when the next time both the friends, they come face to face with each other, they look at each other and they think that this, जो कुछ उसने दिमना ने बोला होता है ना, वो उसी तरह से परसीव करते हैं अपने फ्रेंड को. Oh yes, he is plotting against me, right? So what happens is that the lion of the jungle, he jumps on the cow and eats it, right? And kills it. Once it is killed, his faithful friend and very good friend, he dies, and Kalila wa Dimna, they or Dimna, he has fulfilled his purpose. Story sirf ye hai. The story is only this much. This is the complete story. Now, why was this story important for the civil servants? या आपको हुकूमत के इंतजाम चलाने के लिए इस स्टोरी की क्या जरूरत है? अब कोई मुझे जरा थोड़ा सा बताने की कोशिश करेगा? There are many points which are take home points. First of all, the character of lion is that of an upright character, a brave thing, a brave character. And although he is the king of the jungle and he eats different animals, and especially cow is one of them, but when he looks at this cow, the cow which came to him through Dimna, he actually sees the beauty of that, the positivity of that cow. Both of them, they ox, cow भी नहीं, इसको ox कहेंगे हम. ऑक्स जो है उसकी और उसके साथ दोस्ती हो जाती है. अब ये दोस्ती के लिए तो दिमना ने उनको करीब नहीं लाया था. उसने तो बेसिकली he wanted to get closer to the lion himself, and he got closer to the lion, but उसने जो उसके कानों में फुसफुस करके और उसको एक गलत तरफ लेके जाना था, उसकी वजह से उसने ये सारा खेल खेला था. उसने तो समझा था कि लायन इज गोइंग टू ईट द काउ, और मैं लायन की नजर में और अच्छा हो जाऊंगा कि वाह वाह वाह, मुझे तो शिकार ला के दिया इसने. लेकिन उसने उसके साथ दोस्ती कर ली. दैट वाज समथिंग दिमना कुड नॉट डाइजेस्ट, राइट? That is one take home point. The other take home point is of the story is that Dimna और कलीला तो थोड़ा अकलमंद था ना. वो उसे कहता था कि भाई ये मतलब तुम अपनी औकात देखो कि तुम एक जैकॉल हो. जैकॉल का मतलब पता है ना, गीदड़ जो होते हैं, ठीक है? तो तुम एक जैकॉल हो, तुम इतनी ज्यादा जाके इतनी ऊपर की जाके दोस्ती मत लगाओ, वो भी किंग ऑफ द जंगल के साथ. अंडरस्टैंड? लेकिन Dimna wanted to go and get higher ranks. अब आपके मुआशरे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो दिमना कैरेक्टर होते हैं. यस? और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कलीला कैरेक्टर होते हैं, जो थोड़ी सी अकल देने की कोशिश करते हैं. और बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बेचारे उनकी यानी दिमना फैक्टर का मतलब ये है कि वो दोनों की दोस्ती से, शेर और ऑक्स की दोस्ती से इतने ज्यादा जेलस हो जाते हैं कि वो उस दोस्ती को तोड़ना चाहते हैं. क्या आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे लोग नजर आते हैं?
Now come on this text that is in front of you. Are you there with me? Can you see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Based on the summary provided here are the main points of Kalila व Dimna. ठीक है, इसका ओवरव्यू और स्ट्रक्चर क्या है, यानी उसका स्टोरी क्या है जो कि मैंने अभी आपको बताई है, दोबारा हम जरा समझ लेते हैं. Kalila व Dimna is a collection of fables with ancient Indian origins that was translated into Arabic from a Pahlavi Middle Persian version of Sanskrit text. The book is presented as a series of instructive stories with moral lessons told by a philosopher named Bidpai to King Dabshalam. ठीक है, ये असल में उसका बैकग्राउंड है कि बिदपाई एक फिलोसोफर है जो कि किंग दबशलाम को ये सारी स्टोरीज बता रहा है. ये जो स्टोरी मैंने जैसे आपको बताई है, ये बता कौन रहा है? बिदपाई एक बादशाह का नाम क्या है, दबशलाम को सुनाता है. क्यों? इसलिए कि इससे उसको खुद से मॉरल्स मिल जाएं कि अच्छा ऐसा भी होता है कि अगर दो पॉजिटिव लोगों की आपस में दोस्ती हो रही हो तो बहुत से दिमना फैक्टर्स होते हैं जो कि जेलस हो जाते हैं. मुआशरे में बहुत से ऐसे दिमना फैक्टर्स होते हैं. यस और नो? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. The collection consists of 15 main chapters, each featuring fables whose main characters are often animals. आपको जो मैंने स्टोरी मेन बताई है, सेंट्रल स्टोरी है द लायन एंड द ऑक्स की. The most prominent story introduces the two jackals who give the book its name, Kalila व Dimna. ठीक है, उसमें ये जैसे हमने पीछे आपको मैंने बताया है, मैसेजेस, ये आपको लिंक्स भी दिए हैं, ये इनको आप जाके अभी देखेंगे, इनको स्टडी करेंगे. इसमें देखें द रिंग डव का भी की स्टोरी आएगी, 4 फ्रेंड्स की भी स्टोरी आएगी, 3 फिश की भी स्टोरी आएगी, और सारी की सारी मैंने ये आपको डिफरेंट लिंक्स दे दिए ताकि आप आसानी के साथ जल्दी से समझ सकें. ठीक है, ये देखें उर्दू में भी लिखा हुआ है कलीला व दिमना, शेर और शत्रबा. ठीक है, कलीला व दिमना तो दोनों वो थे. शत्रबा इस ऑक्स का नाम था, इस ऑक्स का नाम शत्रबा था, और शेर जो यानी जो लायन है. ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? हम चलें आगे. Yes, ma'am. अच्छा, अब द सेटअप क्या है? A lion king lives in fear of the loud bellowing of an ox named Shatraba. ठीक है, वो उसकी आवाज, क्योंकि उसने पहले कभी नहीं सुनी होती इस तरह की. आपको पता है ना, गाय की, ऑक्स की आवाज हू करके बहुत ऊंची सी आती है. ठीक है, और अगर वो बड़ी सी जगह पे गूंज रही हो तो जाहिर है जिसने नहीं सुनी होगी वो डर भी सकता है. ठीक है, तो उसके इस डर का फायदा उठाते हुए दिमना took the step. Dimna's ambition. The ambitious jackal Dimna sees an opportunity to gain favor with the king. He arranges a meeting between the lion and the ox, and they become close friends, with the ox becoming the king's confidant. Confidant means uska, yani, what is the meaning of confidant? कोई बताएगा मुझे? राजदार, राजदान, सॉरी. ठीक है, जिसको आप अपने राज बता सकते हैं. राइट, अंडरस्टैंड? अब समझ आ रही है? Dimna ambition क्या है? The ambitious jackal Dimna sees an opportunity to gain favor with the king. He arranges a meeting. ठीक है, और अब जब किंग का वो कॉन्फिडेंट बन जाता है शत्रबा, betrayal and downfall. Now Dimna grows jealous of the ox's influence and schemes to destroy their friendship. He cunningly convinces the lion that the ox is plotting against him, which leads the lion to kill Shatraba. ऐसा ही हुआ है, आपको स्टोरी जो मैंने अभी बताई है. What are the consequences? Consequences क्या होते हैं? Kalila warns Dimna. Kalila, his friend or his brother, he warns Dimna against his treachery. Treachery means, treachery का मतलब होता है आप जब किसी के खिलाफ प्लॉट करते हैं. ठीक है, treacherous behavior is opposite to a positive behavior. Treacherous behavior means that you become vindictive. आप दूसरे के खिलाफ छुप के वार करते हैं और छुप के आप प्लॉट करते हैं. क्या आपको अपने इर्द गिर्द ऐसे बहुत से लोग नजर नहीं आते? Yes, ma'am.
Exactly. So Kalila warns Dimna against his treachery, but Dimna proceeds. Eventually, Dimna's deceit is uncovered and he is imprisoned and executed for his crimes. आखिर में तो वो मारा जाता है, लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान करके जाता है. ठीक है? This story serves as the primary narrative that contains many of the other fables. ठीक है. अब इसमें की थीम्स और मॉरल्स क्या हैं? देखिए, हमने स्टोरी तो नहीं बतानी ना कि एक बादशाह था, एक शेर था, एक ऑक्स था. he used to bellow in the fields, bellow loudly in the fields, and Kalila and Dimna were two jackals. Dimna was the treacherous one, he was the vindictive one, and he wanted to get closer to the lion. So in order to get the favor of the lion, he went to the lion and he said, I'll check it out. What is this sound about? He goes and finds an ox standing there. So he thinks of a scheme and he brings the ox to the lion, thinking that perhaps the lion might eat the ox and may become indebted to him, right? So whatever I've talked in English, Urdu, I'm now telling you in English. I hope you're getting it. So what does he do? He brings the ox to the lion. Yes, ma'am. But because the lion has a positive demeanor, positive demeanor means positive personality. Ox is also a very helpful. It is a very helpful soul, and it is a very helpful soul to. It gives goodness to around humanity. कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाता ना ox. अगर जब तक कि उसको कोई नुकसान ना पहुंचाया जाए या उसको कुछ तकलीफ ना दी जाए, ऐसा ही है ना? Right? So when both of them become friends. And when they become friends, that is something Dimna becomes jealous of, right? So the key themes and moral, and then he plots against both of them, and he goes and speaks ill about the ox to the lion, and he speaks ill about the lion to the ox, right? And then what happens? When they both come and meet each other, face each other, the lion and the ox, both of them are not looking with their own eyes, but looking at each other with the eyes or the understanding which Dimna had given them in their ears. Yes? And therefore, the lion jumps on the ox and kills it. All right? So, key themes and morals. What are the key themes and morals? The stories and their sub-stories are designed to impart wisdom through allegory. And what is an allegory? I would like somebody to speak it out. What is an allegory? It has got a hidden meaning, underlying meaning. It has got layers of meanings, right? Right? इसमें बहुत सारी themes and morals, they are recurring. Recurring means बार-बार आ रहे हैं. Maslan, intelligence over strength. A central lesson is that cunning and intelligence are superior to brute force. यानी intelligence तो नहीं है ये, इसकी cunning है. Cunning of Dimna was more powerful than lion's intelligence. यानी उसका जो उसकी कनिंग थी, जो उसका प्लॉटिंग थी, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा वो है, ज्यादा वेट रखती थी, तभी तो शेर ने उसके ऊपर हमला कर दिया. ठीक है मैम? यस मैम. अच्छा, सुने यहाँ पे ये वाली जो है ना, ये वाली कनिंग एंड इंटेलिजेंस आर सुपीरियर टू ब्रूट फोर्स, ये बेसिकली ये वाली जो आपको मॉरल मिलेगा ना, ये है एक स्टोरी इसमें, ये वाली द स्टोरी ऑफ 4 फ्रेंड्स. ठीक है, जब आप इसको पढ़े, यहाँ से वॉच करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, तो आपको समझ आ जाएगा कि ये वाली जो स्टोरी है, इसमें ये आ रही है इंटेलिजेंस ओवर स्ट्रेंथ. चारों वीक एनिमल्स होते हैं और वो अपना जो है क्या नाम है, अपने आप को शिकारी से किस तरह से छुड़ाते हैं, ये उसकी स्टोरी है. तो इसमें इंटेलिजेंस जो है ये सुपीरियर है ब्रूट फोर्स से, राइट? अब जो मेन स्टोरी है लायन, ऑक्स और कलीला व दिमना की, वो है फ्रेंडशिप, डिसेप्शन एंड बिट्रेयल.
कैसे? द बुक heavily explores the nature of true friendship and the severe consequences of deceit. Now, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बच्चों, आजकल भी अगर आप देखेंगे, किसी भी हुकूमतों में देख लें, आप किसी जगह पे देख लें, आपको नजर आएगा कि ये डिसीट, ये फ्रेंडशिप्स, ये डिसेप्शंस, ये बिट्रेयल्स बहुत ज्यादा हैं। क्या है कि नहीं है? Yes, ma'am. आपकी अपनी अपने लोगों में भी, अपने दोस्तों में भी आपको नजर आता होगा ये बात, एक को दूसरे के खिलाफ भड़काना। Yes, ma'am. जी, तो ये इसलिए ये स्टोरी आज भी रेलेवेंट है और रेलेवेंट रहेगी, बिकॉज ह्यूमन नेचर जहां भी है वो यही काम करेगी। Yes, ठीक है? ma'am. पॉजिटिव ह्यूमन नेचर अपना काम करेगी, नेगेटिव ह्यूमन नेचर अपना काम करेगी। ठीक है? इसीलिए तो वो जो आपको पिछली लेक्चर में आपको याद होगा कि हमने जो वो 7 वैलीज को क्रॉस करना था, उस वक्त हुपो ने क्या बताया कि यू हैव टू ओवरकम ऑल दीज हर्डल्स। फर्स्ट इज द वैली ऑफ क्वेस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ब्रिंग इनटू योरसेल्फ, अपने दिल में ये आपने शुरू करना है, या आपके दिल में ये तमन्ना आए कि आप क्वेश्चन करें भाई अपने बारे में, कि आप, मैं हूं कौन, मैं क्या हूं। ठीक है? फाइन, आई गॉट 2 hands, फेस, माई बॉडी, आई एम स्पीकिंग, बट why am I doing about all these things? अब आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके अंदर एक दिल है जो धड़क रहा है, जो दे रहा है खून जगह पे आपके जिस्म को, जिसकी वजह से आप जिंदा हैं। ओके फाइन, when that stops you die. Okay, die means like, what is this thing that is making you do things? Then you come to understand that there is a soul inside you. Okay? Right? So, ये जो आपकी एक स्टोरी है, फ्रेंडशिप, डिसेप्शन एंड बिट्रेयल, ये आपको इसमें से नजर आती है इस लायन एंड द ऑक्स की स्टोरी में। द बुक हेवीली एक्सप्लोर्स द नेचर्स ऑफ ट्रू फ्रेंडशिप एंड द सिवियर कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसीट। कैन यू नॉट सी, दो फ्रेंड्स को आपस में लड़ा भी दिया, एक का नुकसान इतना ज्यादा करवा दिया दूसरे के हाथों, ऐसे किया ना इसमें। तो द मेन स्टोरी ऑफ दिमना इज द प्राइम एग्जाम्पल ऑफ वन हु इनिशिएट्स अ फ्रेंडशिप टू ब्रेक इट अप। ठीक है? पहले वो इनिशिएट कराता है फ्रेंडशिप, उन दोनों की आपस में फ्रेंडशिप करता है और फिर उसको ब्रेक करता है। द मॉरल्स वार्न दैट द डिसेप्शन ऑफन लीड्स टू ह्यूमिलिएशन ऑफ द डिसीवर। ठीक है? दिमना को बाद में पकड़ लिया जाता है, उसको कैद कर दिया जाता है, उसको सजा मिल जाती है, लेकिन नुकसान तो कर देता है ना। जितनी हुकूमतें, जितनी सिविलाइजेशंस इस दुनिया में गई हैं, बहुत अपने अरूज से, अपने जवाल पे, उनमें यही था। आपने नाम सुना होगा ब्रूटस, करीबी दोस्त हो, जब वो आपको छुरा घोंपे तो उसको कहा जाता है यू टू ब्रूटस, कि तुम भी। वो भी इसी तरह की स्टोरी है, शेक्सपियर का ड्रामा है वो, और बहुत जबरदस्त किस्म का ड्रामा है। और सीजर, जूलियस सीजर के ऊपर है, उसका दोस्त होता है जो उसको बिट्रे करता है। ठीक है? तो ये जो है, द मॉरल वॉन्ट्स दैट द डिसेप्शन ऑफन लीड्स टू ह्यूमिलिएशन ऑफ द डिसीवर। इन अदर वर्ड्स, वो जो मैं ये आपको कह रही हूँ कि जितनी हुकूमतें गई, मुसलमानों की हुकूमत देख लें, स्पेन में 700 साल हुकूमत की, तुर्की में 600 साल हुकूमत की। ठीक है? और ऐसे ही नहीं की, जुडिशियसली की, उस पे क्या उसे कहते हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, जुडिशियसली का और क्या लफ्ज होता है, अदल के साथ हुकूमतें की उन्होंने, दबी तो इतनी चली वो। ठीक है? लेकिन उनको मरवाने वाले कौन थे? यही दिमना कैरेक्टर्स।
ठीक है, हुकूमत के अंदर दिमना कैरेक्टर्स ने उनको मरवाया हमेशा, कि कोई भी हिस्ट्री बुक उठा के देख लीजिए आप, ठीक है। तो the moral warns that the deception often leads to the humiliation of the deceiver and the one must be cautious of hidden enemies even if they appear friendly. ठीक है, आपको अपेरेंटली कोई बहुत कह रहा हो ना, यार मैं तो तुम्हारा बहुत ज्यादा दोस्त हूं, तो फिर भी आपको वॉचफुल रहना है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट, द डेंजर ऑफ हेस्टी जजमेंट। डू यू थिंक दैट द लायन मेड अ वेरी हेस्टी जजमेंट इंस्टेड ऑफ काउंटर चेकिंग के वाकई में ऑक्स जो है वो इस तरह की बात कर रहा है, या ऑक्स ने क्या समझा कि लायन इस तरह की बात कर रहा है, आपस में बात करके क्लियर क्यों नहीं कर ली, राइट? Many stories caution against acting rashly without gathering all the facts. A notable example, ये इसी में है। A notable example is the tale of the man who kills his loyal mongoose thinking it had harmed his son, only to find out it saved the boy from the snake. Importance of wise counsel. अब importance of wise counsel का क्या मतलब है? The fables frequently emphasize the value of seeking and listening to good advice. ठीक है, bad advice को आपको अच्छी तरह से छांट फटक करना चाहिए, और जो गुड एडवाइस है उसको भी यानी उसको भी अच्छी तरह से इवेल्युएट करना चाहिए, राइट? So, a key moral is to consult with others in matters of importance and not disregard their counsel. अब एक और चीज जो आपको इसमें इन स्टोरीज में नजर आती है वो है consequences of greed and ambition. Greed and unchecked ambitions are shown to lead to ruin. Dimna's desire for power leads to his death. In another tale, a man who is told by a dream to kill his neighbor's rooster is advised by his wife to ignore it, but his greed for a reward leads him to cause trouble for himself. इन्हीं स्टोरीज के अंदर एक मैन और उसके नेबर का रूस्टर होता है, रूस्टर कहते हैं मुर्गा, ठीक है, समझ आ रही है? Yes, ma'am. So greed Yes, leads ma'am. to many problems. बिल्कुल मैम। Have you got it? Yes, ma'am. Acha, this was one thing. The other thing that I would like to send you people is, let me just share this with you. मैम ये जो कॉन्फ्रेंस है और ये कलीला व दिमना, इसमें किस टाइप के सवाल आएंगे? ये देखिए, जो उसका मेन जो मेन पॉइंट्स हैं, मेन जो आपकी थीम है उसको आपको एक्सप्लेन करना है। आपको कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स पे ये बताना होगा, या पूछा जाए अगर कि भाई ये कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स इन सोल्स इंटरनल जर्नी टू द डिवाइन क्या ऐसे है, ठीक है, ये क्या मतलब है, व्हाट डू यू मीन बाय दिस थिंग, ठीक है। तो उसने आपने पूरा बताना है कि किस तरह सोल्स जर्नी टू द डिवाइन है, using the animals fables, using the allegory of animals, Hoopo, not animals but birds. Fariduddin Attar gave this story that how Hoopo first convinces all the birds to go and find their king, because without a king everybody gets lost, without any anchor. आप देखें, मेरी बात सुने, आप इस वक्त किस जगह पे बैठे हुए हैं? किसी चीज पे बैठे हुए ना, कहीं बेड पे अपने बैठे हुए, किसी कुर्सी पे बैठे हुए, कहीं बैठे हुए ना आप? यस मैम। ठीक है, तो बैठने के लिए आपको कोई चीज मौजूद है ना? बिल्कुल मैम। उसका मतलब है कि आपको कोई ना कोई एंकर चाहिए, आपको एक अपना एक चीज के लिए आपको अपना एंकर चाहिए होता है, कहीं जहां आप टिक सकें, ठीक है। और आपको एक, देखिए आप बीएस कर रहे हैं, बीएस इन मीडिया साइंसेस, तो आखिर कुछ सोच के आए हैं। चलें, अभी तो शायद हो सकता है बहुत सारे लोग धक्के से आ गए हों, या बहुत सारे लोग बिल्कुल ना आए, ठीक है, लेकिन अब आपको आपके टीचर्स, आपके पेरेंट्स, आपके जो भी हैं, वो क्या नसीहत करते हैं कि अब जिस आप डिसिप्लिन में आए हुए हैं उसको बेहतरीन तरीके से करें, ठीक है। आप में से कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है, आप में से कोई
एक्टर बनना चाहता है, आप में से कोई रिपोर्टर बनना चाहता है, कुछ भी आप करना चाहते हैं, तो आपके सामने मौजूद है सारी दुनिया। देयर इज ऑलवेज रूम एट द टॉप। आप जब एम करते हैं टॉप के लिए, तभी आप कुछ बन सकते हैं। ऐसा ही होता है, यस मैम। ठीक है? तो उसके लिए आप एक बाकायदा आप एक एम रखते हैं ना। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ बर्ड्स में फरीदुल अतार ने ये बताया है कि आपको एक एम ऑफ लाइफ भी रखना है। देयर हैज टू बी सम एम ऑफ लाइफ एंड अ सेंट्रल पोजीशन ऑफ योर लाइफ। और वो जो सेंट्रल पोजीशन है, दैट इज समथिंग विच लिव्स इन योर हार्ट। जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मैं कहीं भी नहीं समा सका, तो कहां समा गया? मोमिन के दिल में। ये कोई छोटी बात है? आप अपने अंदर झांके, ठीक है, तो आपको नजर आएगा अल्लाह ताला, उसका रिफ्लेक्शन। और यही होता है कि जितने परिंदे पहुंचते हैं वहां पे, आखिर में सारी इतनी मुश्किलात को, 7 वैलीज को क्रॉस करके, वैली ऑफ क्वेस्ट, वैली ऑफ लव, वैली ऑफ डिटैचमेंट, वैली ऑफ नॉलेज, याद है? ये सारी कौन कौन सी वैलीज थी, जरा हम रिवाइज कर लें। वैली ऑफ क्वेस्ट से शुरू होता है कि पहले आप में तमन्ना है, जुस्तजू है कि आपने जाना है किसी तरफ, Yes, ma'am. अपने किंग को ढूंढना है। फिर आती है वैली ऑफ लव, इश्क की वैली, ठीक है? और वो लव, वो बिल्कुल और तरह का लव है। बेशक आपके इस इश्क के मजाजी से शुरू होता हो, लेकिन आप इश्क के मजाजी में भी जब पहुंचते हैं तो आप कहते हैं, यार मैं इस बंदे को या इस बंदी को इसलिए मोहब्बत करता हूं, क्योंकि ये नाउ ही और शी इज इन माई वेडलॉक, लेट्स से। आप जिस तरह के जो इश्क वगैरह, जब या फ्रस्ट्रेशन, या उस फ्रस्ट्रेशन नहीं, उसको कहते हैं, व्हाट इज दैट कॉल्ड, इन्फैचुएशन, और वो इश्क नहीं है। इश्क आपको फिर उस रब की तरफ लेके जाता है, जिसपे उस आपकी बंदी ने भी जाना है, आपने भी जाना है, और आपके बंदे ने भी जाना है, और आपने भी जाना है। तो आप कहते हैं कि इस बंदे को भी मैं, आई लव दिस पर्सन बिकॉज आई लव माई अल्लाह। यस, अंडरस्टैंड? दैट इज द वैल्यू ऑफ इश्क, वैल्यू ऑफ लव। व्हाट इज द थर्ड वैल्यू? Third valley. Understanding. Knowledge. अंडरस्टैंडिंग, ठीक है? अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज में क्या आता है कि आपको एक नई दुनिया नजर आती है। ये वही मिसाल है, जैसे मैंने आप लोगों को एक मिसाल दी थी कि अगर आप किसी खूबसूरत वादी के सामने नजारा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं किसी को, ठीक है, और आपने वो मंजर देख लिया, जब आप वापस आते हैं किसी और को बताते हैं, तो वो कहता है हाँ ये अच्छा। वो यकीन ही नहीं कर रहा होता। ऐसा ही है ना? जिस इंसान ने उस खूबसूरती को, उस नॉलेज को, उस समझ को पहुंच नहीं जो गया, तो वो तो ऐसे ही होगा ना, जैसे बस यार ये क्या, ये बकवास कर रहा है, ये क्या बात कर रहा है। आपको याद है? अच्छा चले मैं आपको भी बताती हूँ एक और चीज। मुझे बताइए, वो आपका क्या उसे कहते हैं, ये शेर भी शायद सुना हो आपने, खुदा खुद बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. जी, इसका पहला मिसरा क्या है? खुद ही को कर बुलंद ना। हाँ, ये बड़ा आम हो गया है, मगर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले। अब तकदीर क्या है? तकदीर क्या है? तकदीर है, एक सेकेंड बेटा, मैं जरा बता दूं। मैम तकदीर किस्मत अल्लाह के। अब एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुने। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही
गहरा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है? तकदीर का लफ्ज जो है ना वो अरबी में कदर से निकला है, ठीक है। कदर का असल मतलब होता है अंदाजा, ठीक। अब मैं आपकी टीचर हूं, मैं आपके क्लास के बिहेवियर से अंदाजा लगा रही हूं या लगा सकती हूं, या आपके जो है क्या नाम है बात करने के अंदाज से कि ये बच्चा जो है ना ये बहुत बेहतर है, ये बहुत आगे तक जाएगा, ये बच्चा जो है वो मेहनत नहीं करता, ठीक है। मैं एक टीचर हूं, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ ना? यस, यस बिल्कुल मैम। मैम। ठीक है। अब ये मैंने अंदाजा लगाया है। अब जिसके लिए मैंने अंदाजा लगाया कि ये तो बहुत अच्छा करेगा पेपर, और वो बिल्कुल मेहनत नहीं करता, वो हाथ छोड़ देता है, वो बच्चा हाथ छोड़ देता है, तो क्या होगा कि मैंने तो सिर्फ एक अंदाजा, एक कदर मुकर्रर की थी, ठीक है, एक अंदाजा मुकर्रर किया था। आप अगर उस पे मेहनत करके नहीं पहुंचे तो आप फेल हो जाएंगे। और एक बच्चा जिसके लिए मेरा अंदाजा शायद ये था कि ये इतनी मेहनत नहीं करेगा, वो बहुत ज्यादा मेहनत करता है और वो वहां पहुंच जाता है, बहुत अच्छा पेपर कर देता है, तो क्या मैं मार्क्स काट दूंगी उसके, सिर्फ इसलिए कि मैंने अपना अंदाजा वो रखा हुआ था उस बच्चे के लिए? नो मैम। ऐसा तो नो नहीं है मैम, ना, नो मैम। ठीक है। अच्छा, तो फिर क्या है? फिर ये है कि अल्लाह ताला एक तक एक कदर मुकर्रर करता है, एक अंदाजा मुकर्रर करता है कि ये इंसान जो है ना, ये जो जो कुछ कर रहा है ना, ये यहाँ तक पहुंचेगा। आप सीधा सीधा आप एक बच्चा चल रहा हो आपके सामने, आप कहेंगे, वो सामने अगर बहुत ज्यादा कहीं गिरने का है एहतमाल, तो आप वो कहेंगे ना कि गिर जाओगे भाई, और अगर वो नहीं सुनेगा तो वो गिर जाएगा। ऐसा होगा कि नहीं? बिल्कुल मैम होगा। आप कोई अल्लाह ताला है? नहीं, ऐसा नहीं होता। आप अंदाजे मुकर्रर करते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने अपने बंदों के लिए अंदाजे मुकर्रर किए में। अब उस दुआ, उसको कौन सी चीज बदलती है? आपका अमल और आपकी दुआ। हजरत अली का भी कॉल है ना कि आपकी दुआ तकदीर बदल देती होती है। अगर कोई चीज ताकत रखती है ना तो आपकी दुआ, मीनिंग देयर बाय कि आप अगर इतनी ज्यादा गिरियाजारी अल्लाह ताला से करेंगे तो आखिर वो सुन ही लेगा, ठीक है। अभी यस मैं मैम। आई एम जस्ट टचिंग अपॉन दिस कॉन्सेप्ट। ये बहुत गहरा और बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है। अगर आपका दिल हुआ कभी तो बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिन पे हम बहुत सी बातें कर सकते हैं, ठीक। सो तकदीर इज वो जो मैंने शेर बोला है, खुदी को कर बुलंद। आपका जो खुदी है, यानी एक तरह से एक हदीस भी है और अल्लाह ताला कहता भी है कि जो मैं डरो मोमिन की फरासत से, डरो मोमिन की फरासत से, क्योंकि जब वो देखता है तो अब मैं उसकी आंख बन जाता हूँ, वो कोई काम करता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूँ। जो अल्लाह ताला के अहकामात पे इतना ज्यादा चलता है तो वो उसकी सोच समझ उस तरह से एंगल हो जाती है, ठीक है। इसलिए आप जब अपनी खुदी को इतना बुलंद करते हैं, इतना करीब करते हैं उस हस्ती से जो आपके दिल में मौजूद है, जिसको आपने खुद से अपने गंदे गुनाह कर करके तो निकाला है, ठीक है, या निकालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं दिन रात आप, तो वो आपका अमल है, वो मौजूद है, वो मौजूद है। और वो इस तरह भी मौजूद है कि अल्लाह ताला ने एक हदीस कुदसी है कि मतलब बार बार अल्लाह ताला मुड़ मुड़ के देखता रहता है अपने बंदों की तरफ कि शायद ये मेरी तरफ आ जाए, शायद ये मेरी तरफ लौट आए, शायद ये इस तरह से आ जाए। ऐसा है ना? यस मैम। तो बात ये है कि ये खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है, राइट। एंड अब अगर मैं आपको कहूं कि बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जो ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि उनकी खुदी इतनी बुलंद थी कि वाकई में यानी उनको ये पहले से ही अल्लाह ताला फिर उनकी मर्जी के मुताबिक उनको वो चीज दे देता है।
ये बहुत खूबसूरत जगह है, ये बहुत खूबसूरत वादी है, ये जब जिसने चखी होगी वही चख सकता है। तो ये हैं वो वैलीज, वैली ऑफ नॉलेज, वैली ऑफ उससे अगली कौन सी है वैली? Detachment. Detachment. When you come to understand this thing, that God Almighty is in my heart, and when you come to understand that God Almighty is the one who has created me and he has told me all these things, कि भाई मैंने किस तरह से जिंदगी को गुजारना है, तो फिर आप डिटैचमेंट तो आ जाएगी। जो दुनियावी आपकी लज्जतें हैं, आपको उनसे डिटैचमेंट आ जाएगी। अब ध्यान से सुने, लज्जतों का मतलब ये नहीं है कहा जा रहा कि आप जाके ये मैं यहाँ पे क्लास लेने की बजाय जाके जंगल बियाबान में बैठ जाऊं, बस एक तस्बीह पकड़ लूं और तस्बीह करना शुरू कर दूं। नो, नॉट दैट। ये नहीं है, ये डिटैचमेंट नहीं है कि मैं अपनी जरूरत की चीजें, अपना कपड़े, अपना जो कोई सवारी है, अपनी कोई जरूरत की चीजें हैं, उनको भी आग कर दिया जाए। नहीं, ऐसा नहीं। आपने दरमियान की रास्ता है। रिमेंबर, मॉडरेशन इज अ वर्च्यू, ग्रीक्स भी यही कहते थे, मॉडरेशन इज अ वर्च्यू। तो आपकी वैल्यू ऑफ डिटैचमेंट आ जाती है। उसके बाद आपकी कौन सी आती है? Ma'am, unity. To give a lot of explanation कि what are these values about, why is it an internal journey or soul's journey to the divine and all those things, Okay, ma'am. Thank you. right? और फिर ये कलीला व दिमना में what are the lessons that you learn from all this main story, what is the main story and what are the lessons that you learn from it, उसी से मुतालिक आपका क्वेश्चन आएगा। सही हो गया मैम। ठीक है, अब मैं आपको आई थिंक मेरे ख्याल में व्हेन यू कट मी शॉर्ट ऑन दिस, दैट मीन्स कि अब आप लोग जो है आपकी ये जो लिंक है कलीला